Good morning, students. Welcome back to the class. Today we are going to study about another classification of business, that is commerce. We have studied about industry and today we will study about commerce. So commerce refers to all those activities which help directly or indirectly in distribution of goods to the ultimate consumer. Industry is manufacturing goods, but these goods are of no use until and unless they are given to the ultimate consumer. तो कस्टमर तक वो सामान पहुंचाने की जो ड्यूटी है दैट इज़ टू द कॉमर्स सेक्शन. बनाने की ड्यूटी जो है दैट इज़ ऑफ इंडस्ट्री एंड जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की ड्यूटी है दैट इज़ ऑफ कॉमर्स. सो फंक्शंस ऑफ कॉमर्स की अगर हम बात करें तो इट हेल्प्स टू रिमूव वेरियस हिंड्रेंसेस. बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत से ऐसे हिंड्रेंसेस हैं जो रिमूव हो जाते हैं ड्यू टू हेल्प ऑफ कॉमर्स. लाइक द फर्स्ट प्रॉब्लम इज ऑफ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स. Like there are two groups. One is producer group, there is consumer group. Producers are the one who produce and consumer are the one who consumes. Now they don't know each other personally. ठीक है, डायरेक्ट लिंक तो है नहीं, तो इनके बीच में जो डायरेक्ट लिंक क्रिएट करता है दैट इज ऑफ ट्रेड सेगमेंट. ट्रेड सेगमेंट में क्या होता है, सामान एक तरफ से बनाने वाले और बेचने वालों के बीच में बिजनेसमैन होते हैं जिनको हम ट्रेडर्स बोलते हैं. रिटेलर्स हो गए, होलसेलर्स हो गए, तो ये लिंक क्रिएट करते हैं बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. तो ट्रेड सेगमेंट हिंड्रेंस ऑफ पर्सन रिमूव करता है. देन देयर इज हिंड्रेंस ऑफ प्लेस. एक गुड बन रहा है एक एरिया में, चाहिए दूसरे एरिया में, ठीक है, तो दैट हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, दैट द गुड्स आर नॉट अवेलेबल एट एवरी प्लेस, दैट इज सॉल्व बाय ट्रांसपोर्टेशन. थर्ड प्रॉब्लम इज हिंड्रेंस ऑफ टाइम. कुछ गुड्स ऐसे हैं बनते हैं साल में एक बार बट दे आर रिक्वायर्ड होल टाइम. लाइक वीट अगर प्रोड्यूस हो रहा है दैट विल बी प्रोड्यूस ओनली इन अ स्पेसिफिक सीजन बट इट इज रिक्वायर्ड द होल टाइम. सो जो वेयर हाउसिंग सेगमेंट है दैट हेल्प्स टू रिमूव दिस हिंड्रेंस ऑफ टाइम. हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज इज द एक्सचेंज प्रॉब्लम ऑफ मनी. आपको लोन्स चाहिए, आपको पैसे एक्सचेंज करने हैं, दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय द बैंकिंग सेगमेंट ऑफ कॉमर्स. Hindrance of risk. When we are doing business, there is a risk that goods might get stolen, goods might get destroyed by fire. So to reduce this risk, we cannot eliminate the risk, but to reduce this risk, the insurance segment of commerce helps to remove the hindrance. Hindrance of knowledge. You don't know about the each and every brand until and unless there is an advertisement of that. So the advertisement segment let the consumer know about the different products that are available in market. So it helps to remove the problem of knowledge between people. Now comes the classification of commerce. Commerce can be classified into two parts. Commerce can be classified into two parts: trade and aids to trade. Trade means buying and selling of goods. Manufacturing is done by industry, but the buying and selling is done by trade. Trade segment of commerce brings together the manufacturer and the consumer. Manufacturer ने सामान बनाया, कंज्यूमर को खरीदना है, बट उनके बीच का जो लिंक है दैट इज द ट्रेड सेगमेंट. अगर ट्रेडर्स नहीं होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू डायरेक्टली हैव टू गो टू द मैन्युफैक्चरर टू बाय दोज गुड्स. सो द लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर इज ट्रेड सेगमेंट. नाउ द ट्रेड सेगमेंट कैन बी डिवाइडेड into two parts on the basis of geographical location. One is internal trade and another one is external trade. Internal trade means the trade which happens within the boundary of a country. The trade which happens within the boundary of country is called internal trade. And the trade which happens outside या between two or more countries, that is called external trade. Internal trades हो गया within the geographical boundary of a country. इसको हम लोग home trade भी बोलते हैं, ठीक है. यहाँ पे जो transactions होंगे that will be done only in home currency. It can further be divided into two parts: wholesale and retail. Wholesale trade में क्या करते हैं हम लोग, जो सामान हमने क्या कहते हैं खरीदना या बेचना है that will be done in bulk quantities. But when we talk about retail trade, then it is on smaller quantities. ठीक है ना. Wholesale trade is between mostly manufacturers and the retailers. ठीक है. Wholesaler is the link between manufacturer and retailer, whereas the retailer is the link between wholesaler and ultimate consumer. ये तो हो गया इंटरनल विद इन द कंट्री. द नेक्स्ट सेगमेंट इज एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड हो गया विद इन द कंट्री, एक्सटर्नल ट्रेड होता है विद सम अदर कंट्रीज, ठीक है ना. जब आप किसी और कंट्री के साथ में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड. इसकी कोई बाउंड्री लिमिट नहीं है, आप किसी भी कंट्री से, आप यूएस से करिए, आप रशिया से करिए, चाइना से करिए, कहीं से भी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड. यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे,
The currency used will be foreign currency. Up is it can be of three types. You already know two: export and import. Export means selling of goods to other countries, and import means buying of goods from foreign countries. ठीक है, तो export and import you have already studied about these two. The third one is interport. Interport means import of goods for the purpose of export. Means you are importing goods from some other country, but you are not using it in your home country, but you are यू आर सेलिंग इट टू सम अदर कंट्री. आपने खरीदा, आपने खुद यूज ना करके आपने किसी और को बेच दिया सामान. दिस इज कॉल्ड इंटरपोर्ट. ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रेड सेगमेंट. अब ट्रेड सेगमेंट को सपोर्ट करने के लिए होता है एड्स या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड सेगमेंट. दीज आर दोज सर्विसेज विच हेल्प्स टू मेक द बाइंग एंड सेलिंग मोर ईजी. ठीक है, ये सर्विस सेक्टर बेसिकली हमारा जो टर्शरी सेक्टर है, बेसिकली दैट इज द एड्स टू ट्रेड सेगमेंट. सो द फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. गुड्स बनते एक जगह पे हैं बट चाहिए हमें हर जगह पे. ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह तक जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है दैट इज डन बाय ट्रांसपोर्ट सेगमेंट. लेबर मूवमेंट हो, रॉ मटेरियल मूवमेंट हो, फिनिश गुड्स मूवमेंट हो, दैट इज एवरीथिंग इज डन बाय ट्रांसपोर्टेशन. एंड कम्युनिकेशन लाइक इंटरनेट, टेलीफोन सर्विसेज. यू कैन नॉट इमेजिन एनी बिजनेस टू बी डन विदाउट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. तो कम्युनिकेशन सेगमेंट भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है. द नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंस. बैंकिंग एंड फाइनेंस हमें हेल्प करता है किस चीज़ के लिए, कि आप अपने लिए क्रेडिट फैसिलिटीज़, लोन्स वगैरह कैसे अरेंज करेंगे, किस तरीके से आप उनका बिजनेस अपना चलाएंगे, चेक्स का पेमेंट, इंटरनेट बैंकिंग, एवरीथिंग. तो स्मूथ बिजनेस के लिए पेमेंट्स भी चाहिए, तो बैंकिंग सेगमेंट हेल्प करता है. इंश्योरेंस, दे आर वेरी रिस्क. फ्लड है, अर्थक्वेक है, फायर है, थेफ्ट है, इन सब से प्रोटेक्शन के लिए वी टेक इंश्योरेंस. तो इंश्योरेंस reduces the risk and the businessman can do his business without a little less tension. उसके दिमाग से थोड़ा बर्डन कम हो जाता है कि इन केस अगर कुछ होता भी है बुरा तो इट कैन बी मैनेज, इट विल बी मेक गुड बाय द इंश्योरेंस कंपनी. वेयर हाउसिंग इज फॉर स्टोरेज, बेसिकली गोडाउन्स. वेयर हाउसिंग हेल्प कैसे करती है, मैं प्रोडक्शन अगर मेरे पास वेयर हाउस नहीं है, आई विल प्रोड्यूस ओनली दैट मच गुड विच कैन बी सेल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं करूँगा. बट वेयर हाउसिंग की वजह से क्या होता है, आई कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स, आई विल कीप इन वेयर हाउस एंड व्हेन इट देयर विल बी मोर डिमांड आई कैन सेल ऑफ दैट. तो मेरा प्रोडक्शन कभी रुकेगा नहीं. तो वेयर हाउसिंग हेल्प अस इन दैट वे. इन द लास्ट इट एडवर्टाइजिंग. वी प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है, वी प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है, विच वी नो but our customers don't know. So it helps the customer to know about the goods that we are making these new goods, so it can be easily available to them and we can easily sold them off. So this is the commerce segment of your business, and in next portion we will further more discuss about this chapter. Till then, take care and have a great day.